हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ मैं आज। ये जो वीडियो अब मैं आपको नीचे थंबनेल में दिखा रहा हूँ इस समय, ये एक बहुत ही आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। मेरे को भी रिकमेंडेशंस में आई, सजेशन में आई, तो मैंने देखा एक ऑब्वियसली एक इंडियन लेडी मुझे दिख रही थी इस वीडियो में। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इमिग्रेशन के थ्रू फंसी हुई, क्योंकि बहुत सारा गोल्ड है इनके पास। तो मैंने सोचा एक अवेयरनेस वाली वीडियो बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि बीइंग इन अमेरिका मुझे इस लॉज के बारे में पता है, इन लॉज के बारे में। और हो सकता है आप लोगों को जो इंडिया से पहली बार ही आ रही हो उनको नहीं पता हो। सिर्फ इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप ये फ्यूचर में गलती ना करें, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो पहले तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि क्या हुआ इस लेडी के साथ। इंडिया से आ रही थी ये अमेरिका, कितना सारा गोल्ड और कैश और ये सब लेके आई हैं। और मैं आपको इसी वीडियो में आपको लास्ट में रूल्स बताऊंगा कि आप कितना लीगली कितना कैश ला सकते हैं, कितना गोल्ड ला सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स ला सकते हैं, कितना क्या क्या फूड आइटम्स ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते, और कितनी अल्कोहल ला सकते हैं आप लोग अमेरिका में। तो पहले हम ये वाली वीडियो देखते हैं और इसके बाद सब डिस्कस करेंगे। What did you purchase on this trip that's coming in today? Just clothes. Clothes? What's the value of the clothes? Maybe around $1,000. $1,000. Do you have any gold with you today? Gold is mine. I didn't buy anything. What kind of gifts did you get? No gifts. You didn't get any gifts. All right, please put your luggage up on the belt. Do you have any food, alcohol, tobacco of any kind? No. Open that up for me. What is that exactly? Sound of desserts. Break one open for me, please. You can fill that up. Wow. I thought you didn't buy jewelry. That is my mom's gift. I didn't ask you if it was a gift. I asked you if you bought any jewelry. Oh, I mean, that is I didn't buy with my money. I specifically asked her if she bought any gold or received any gold on the trip. She declared that she had not. They gave it to me. I didn't buy it. Even if you get gold as a gift, it's still a new item coming into the U.S. and it's dutiable. You have the receipt. It's in your possession. The receipt's so I know it's brand new. So right now it's for gold. Where are the receipts for this? Those are long back. When? It's a 3 years back. When was the last time you wore this? I wore it in India Yeah. Where? for wedding. Show me a picture from the wedding. There is a picture in my ceremony I wore. Okay. When you bought that necklace in India last time, did you pay duty when you came into the U.S.? I think so. Pay tax on it? I don't remember. You don't remember or no? I don't remember. You'd remember if you paid tax, I think. Did you declare it? No. Let's match these up. So we have a necklace, earrings. Where is the receipt for this one right here? Oh, these are old ones. Why are they in a new box? I put it there for the safety. Why didn't you put it in the other box? That is full, right? No. There's only one in there. There's two in there. Traveler returning from India keeps skirting the truth about her gold. Why didn't you tell me you had jewelry? I don't understand. I mean, You know I'm gonna open your bags. my mom gave it to me, so The receipt actually has your credit card information. She said, I'm gonna go weigh this, okay? She doesn't have receipts for all of these items, but she has receipts for most of them. So when that happens, whatever doesn't have a receipt, I weigh it. So you declared 1,000 and no jewelry. I mean, I bought a clothes $1,000. Sure. I spent my You money. still have $1,000 in clothes and $4,977 in jewelry. I mean, that is all my old jewelry, right? These are the new receipts from No, the jewelry those that's are all bought on the rupees. 12th. I just Okay. converted it. It's a 4,000. There you go. Indian rupee, right? Okay, That's okay. where you were. Okay. It's pretty clear. I'm gonna go talk to a supervisor. Cleared $1,000 in clothing, no gold. Wound up having $4,900 in gold. And she admitted last year of bringing a necklace in and never paid duty on it either. Charge him? Are you going to seize it? How much gold are we talking about in pieces? 5 pieces. 5 pieces. All right. Since we've never stopped you before,
Today we're removing your exemption and just charging you duty. Okay. It's a luxury. If you fail to properly declare the merchandise, the exemption is removed from you. If you do this again, we're seizing your gold. All of it. Got it? Yeah. This is your one and only warning. You're going to pay duty today. How much? It will be $353 US. Really? 353 for gifts? Well, that's because you didn't declare it. If she did misrepresent herself, she would have paid far less today if she would have honestly declared what she had. Please exit over there by the cashier cage. तो गाइस आप होपफुली आपने वीडियो देखी हो, ये वाली भी मेरी सजेशन में आ रही थी बहुत एक दो दिन से, और मेरे ना फ्रेंड्स ने भी शेयर करी अवेयरनेस के लिए, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो देखो इस वीडियो में सबसे पहले तो गलतियाँ क्या क्या हुई हैं। इस वीडियो में सबसे पहले ये जो लेडी है इंडिया से, इन्होंने ना डिक्लेयर नहीं किया। सबसे पहली मिस्टेक, आपको डिक्लेयर करना ही करना है अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ लेके आए हो जो कि डाउटफुल है। इतना सारा गोल्ड ऑब्वियसली डाउटफुल है, राइट। अगर डिक्लेयर कर देती होती ना तो लास्ट में इनको जो $350 का जो टैक्स पड़ा है वो भी नहीं पड़ता, क्योंकि इनका गोल्ड विद इन लिमिट्स था, पर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो वो था। प्लस आपने देखा होगा वीडियो के लास्ट में इन्हें एग्जामिशन भी इनसे छीन ली गई है। एग्जामिशन का मतलब है बेसिकली आप जब आप यूएस में आते हो तो देयर इज अ लिमिट, आप उतने तक का सामान ला सकते हो, वो एग्जामिशन होती है। अब वो एग्जामिशन भी चली गई। अगली बार इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इनका सारा सामान सीज कर देंगे वो लोग, परमानेंटली रख लेंगे अपने पास। तो बहुत सबसे पहली गलती इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो इनका 10,000 से ऊपर था गोल्ड या कम था? तो मैं लिमिट से भी बताऊंगा अभी बात, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने। ओके। तो सेकंड चीज़ जो इन्होंने गलती करी वो थी झूठ बोलना। एक बार आपने डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर से अब आपकी बैग की चेक हो रहा है, तो एटलीस्ट वहाँ तो सही बोल दो। वहाँ कह रही है मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, और बाद में कहती है कि मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया है। तो झूठ तो मत बोलो ना एटलीस्ट। अब आप तो पकड़ी गई हैं, अब तो झूठ मत बोलो। तो ये सब देखो, इससे ना वो क्या करते हैं, ग्रिल कर रहे हैं आपको कि भाई फोटो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपने कब पहना है, हर चीज़ मुझे दिखाओ। अगर आप सच बोलोगे ये सब नहीं करेंगे वो आपको। और लास्ट में जब इनको टैक्स पड़ा $350 का, तो वो भी कहती व्हाट रियली, वो कम ऑन, बहुत सस्ते में छूट गई। यहाँ पूरा गोल्ड रख सकते हैं वो आपका, अगर आपने क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया और झूठ बोला है ना, पूरा गोल्ड रख सकते हैं वो आपका, सीज कर सकते हैं। $350 कुछ भी नहीं है। बट चलो गाइज, इसी वीडियो में मैं आपके साथ थोड़े से इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये सारे फैक्ट्स का मैं सोर्स भी डाल दूंगा वीडियो में, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है यूएस की, ये वहाँ से मैंने फैक्ट्स लिए। तो हाउ मच कैश और मनी कैन यू ब्रिंग इन टू द यूएस फ्रॉम एनीवेयर। अब इंडिया से हम लोग, तो मैं इंडिया से बात करता हूँ। इंडिया से हम अमेरिका कितना कैश ला सकते हैं? $10,000 गाइस। तो $10,000 बोल रहे हो ना? $10,000। तो अगर कोई रुपीस ला रहा तो रुपीस पहले बात तो कोई लाएगा नहीं, यहाँ रुपीस क्यों लाएगा कोई? हाँ राइट। तो 10,000 रुपीज अगर ला रहे हैं तो इक्वल्स टू लाइक 10,000 से नीचे होना चाहिए। $10,000 से कम होने चाहिए आपके पास। आप ज़्यादा ला सकते हो, आप $15,000 भी ला सकते हो, बट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेयर करने के बाद हो सकता है आपको ड्यूटी पड़े, वो ऑफिसर्स के ऊपर है। पर अगर आपने नहीं किया और अगर आप पकड़े गए तो वो आपको या तो फाइन कर देंगे या वो सारा का सारा माल रख लेंगे। तो क्या बेटर है, टैक्स देना या फिर सब कुछ लूज करना? हाँ। तो डिक्लेयर जरूर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट गाइस, आप कितना गोल्ड ला सकते हो इंडिया से अमेरिका? अगेन सेम लिमिट, $10,000 तक का गोल्ड ला सकते हो। अब आपने देखा ये जो लेडी है, ये इनका गोल्ड $5,000 के कम निकला, तो ये बिल्कुल सही था। फिर भी इनको टैक्स क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। समझे पॉइंट? हाँ। तो गोल्ड तो कम था, गोल्ड कम तो था, अगर वो पहले ही बता देती तो फिर बच जाती। हाँ। तो ये पॉइंट था उन्होंने। ये सबको लगता है कि ओ हम नहीं पकड़े जाएंगे, कोई मुझे लगता है कि लोग इस वजह से नहीं बताते, है ना, हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन क्योंकि चेकिंग तो होती है ना किसी को रैंडमली तो पकड़ेंगे ना, तो अगर बाई चांस आपको पकड़ लिया तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए लीगली डिक्लेयर करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए अगर आप कुछ भी ऐसी चीज ला रहे हो तो। क्योंकि अगर आप देखो लिमिट्स के नीचे है फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो देखो इनका गोल्ड $5,000 के भी नीचे था, 10,000 की लिमिट है, आराम से बच जाती, पर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इनकी एग्जामिशन भी खत्म हो गई, इनको टैक्स भी देना पड़ा। और पता है एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आप गोल्ड लेके जा चुके हो अमेरिका और आपने टैक्स दे दिया है उसके ऊपर,
आप लेट्स से फिर से इंडिया जाके अमेरिका जा रहे हो, यू नो फ्यूचर में आप दोबारा थोड़ा ना टैक्स हो गया उसका, तो आप उसकी रिसीट लेके चलो पहले की टैक्स की, कहीं डबल टैक्स ना पड़ जाए। रिमेंबर इस ऑफिसर ने इस लेडी से पूछा था। और अगर मैंने यूएस में कुछ बाय किया, अपना गोल्ड बाय किया, यूएस में बाय किया है, मैं इंडिया लेके गई अपनी पार्टी के लिए और इंडिया से वापस आई हूँ यूएस, तो थोड़ा टैक्स दूंगी क्योंकि मैं पे कर चुकी हूँ ना, यूएस में पे कर चुकी हूँ। हाँ, और ये जो टैक्स होता है ये एनीथिंग न्यू दैट यू परचेज इन आउटसाइड कंट्रीज, जैसे इंडिया में अगर आपने खरीदा हो तो आप आपके ऊपर है। हाँ। अगर आपने अमेरिका खरीद के इंडिया लेके गई फिर वापस अमेरिका लाई, उसमें टैक्स नहीं होगा। और वो आप बोलो ना कि भाई अगर आपने इंडिया जाके परचेज किया, यूएस ले आए, आपने टैक्स दे दिया, लाइक डिक्लेयर कर दिया और आपने पैसे दे दिए उसके जो टैक्स देना होता है, राइट, जो ड्यूटी दे दिया, आपने दे दी एक बार। अब मैं वही गोल्ड नेक्स्ट बारी भी इंडिया गई, वो लेके गई, वापस आऊंगी तो ऑब्वियसली अभी भी ओवर है, बट अब नहीं दूंगी ना क्योंकि अब तो मैं पहले लास्ट ईयर दे चुकी हूँ। और पर उसका फिर ड्यूटी की वो फोटो या प्रूफ या कुछ भी लेके ट्रैवल करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि आप नहीं करेंगे फिर से थोड़ा ना आप टैक्स देना चाहिए। तो मैं बार बार थोड़ा दूंगी। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स ला सकते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गाइस मैं फिर से वो जो एग्जेम्पशन की बात कर रहे थे उस पर आऊँगा। एग्जेम्पशन कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। आई बिलीव मैंने गूगल किया है अभी, तो $800 तक की पर्सनल एग्जेम्पशन है, तो $800 तक का आप सामान ला सकते हो इंडिया से अमेरिका। और वो न्यू चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि जैसे मैं फ़ोन लेके गया और फ़ोन ले आया वापस अपना, तो यू नो $800 के ऊपर हो गया। नो, कोई न्यू चीज़ जो आपने वहाँ पे खरीदी हो इंडिया में, जो आप अमेरिका लेके आना चाहते हो, या फिर कोई गिफ्ट हो न्यू, तो उसके $800 तक की लिमिट है, उसको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। और यू नो ये बहुत अच्छी चीज़ है डिक्लेयर करना, आपने अभी भी जैसे डिस्कस किया इस वीडियो में। लगे यहाँ तो जैसे यूजुअली लोग लैपटॉप्स के बारे में पूछते हैं कि भाई लैपटॉप, कैमरा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग लाते हैं, यूजुअली 2-2 लैपटॉप भी लाते हैं कई बारी। तो बस ये ध्यान रखें कि कुछ नया ना हो। अगर आपने नया एक्वायर किया है इंडिया में तो उस पर टैक्स लगता है, ना कि यूज्ड आइटम पे। और ये कॉन्सेप्ट गोल्ड में नहीं होता कि मेरा गोल्ड, जैसे ये लेडी बोलती है कि मेरा यूज्ड गोल्ड है, पुराना गोल्ड है। हाँ, वही जैसे शिल्पा ने बोला, अगर आपने पहले टैक्स दे दिया है पिछले ट्रिप में तो ठीक है, ड्यूटी अगर पहले दे चुके हैं। पुराना मतलब ये है ना कि आपने पहले बाय किया और आप ला चुके हो एक बार यूएस वापस, तो उस टाइम तो आपने डिक्लेयर किया होगा ना, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, अब कितना क्या क्या फूड आइटम्स अलाउड है इंडिया से लाना और क्या अलाउड नहीं है। एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है क्योंकि बहुतों को कंफ्यूजन होती है ना, और एक्चुअली कंफ्यूजन किसी को पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। और जैसे मेरे पेरेंट्स भी ना कई बार जैसे आने के लिए बोलते हैं या मैं बुलाऊंगा तो मैं उनको ये बोलूंगा कि प्लीज ये सब आइटम मत रखना, क्योंकि उनको लगता है वो इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट अगर पकड़े गए ना तो फाइन भी होगा, फूड तो लेंगे, फाइन भी होगा। और यू नो हम भी जब आए हैं लास्ट इंडिया से तो उनको तो वो प्यार के हिसाब से ना ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो फिर हाँ, बहुत सारी आइटम्स है गाइस जो कि अलाउड नहीं है, फूड आइटम्स। सबसे पहले तो मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, सॉइल, प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा ग्रे सीड्स, जैसे स्पाइसेस होते हैं, हम लोग इंडियन लोगों जैसे भाई धनिया मसाला, यू नो जो मसाले हम इंडिया से लाते हैं, ये मत लाएं गाइस, ये सीड में आते हैं और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे मसाले मिल जाते हैं, यहीं से खरीदें, इंडिया से मत लेके आए, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये भी इनका ध्यान दें। जैसे कई बार मैंने सुना है जैसे घी वगैरह, आप बोलोगे अचार बहुत आता है, अचार जैसे घी भी मिल्क से बनता है, तो समझो कि आपने कहा मिल्क तो नहीं लेके आया मैं, पर मिल्क प्रोडक्ट है ये वाला। जैसे अब जैसे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे चॉकलेट्स बिकॉज वो फैक्ट्री में सील होती हैं इसलिए वो अलाउड है। पर कुछ चीज़ें ऐसी अगर वो बाहर से सील होके आती हैं तो वो अलाउड है। बट देखो कई बार ही ना आपको जज करना बहुत मुश्किल होता है क्या ये अलाउड है क्या ये अलाउड नहीं है। तो मैं बस ये बोलूँगा रिस्क मत लें, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, यू नो, तो मत लेके आए। यहाँ पे अमेरिका में सब मिल जाता है। और जैसे चाय पत्ती की बात करी शिल्पा ने, चाय पत्ती, अचार, ऐसी चीज़ें, डू यू थिंक अगर कंपनी से बिल्कुल पैक्ड है, सील्ड है, तो आप ला सकते हो। ब्रांड न्यू अगर आप पैकेट ले रहे हो चाय पत्ती का तो आप ला सकते हो। हाँ, क्योंकि सील पैक है ना। मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो जहाँ से मैं सोर्स है मेरा, आप ये पढ़ लेना, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना। लास्ट आइटम डिस्कस करेंगे गाइस, कितना अल्कोहल आप ला सकते हो इंडिया से अमेरिका। तो इसकी भी लिमिट है 1 लीटर पर पर्सन। यूजली 1 लीटर की बॉटल नहीं आती है, 750 ml की बॉटल आती है या फिर 1.25 लीटर की बॉटल आती है। तो अगर 2 बंदे आ रहे हैं तो 1 लीटर उसका 1 लीटर मेरा, तो यूजुअली आपको 750 की बॉटल लेनी पड़ेगी अनलेस आप कुछ और ले रहे हो। तो यू नो दैट्स अ लिमिट गाइस। अगर आप लिमिट में ट्रैवल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे सब चीज़ें। डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी इसलिए आप कर रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं कि मत करें।
डिक्लेयर करें, अगर लिमिट्स के अंदर है तो डिक्लेयर करने के बाद भी आपको कुछ नहीं होगा। तो ये थी आज की अवेयरनेस वीडियो गाइज। होपफुली आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाऊंगा मैं आपके लिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।